போது நீ ஒரு மெட்டு கட்டி ராகம் போது நீ தந்தனத்தம் தாழம் போது நீ ஒரு மெட்டு கட்டி ராகம் போது நீ சொந்த வந்தையாவும் உன்னை விட்டு தள்ளலாம் நீ நம்பின வேற வெறும் உன்னை ஒதுக்கி வைக்கலாம் உனக்காக பிறந்தாரே ஒரு தெய்வம் ஒருபோதும் உன்னை என்று கைவிடாத தெய்வம் உனக்காக பிறந்தாரே ஒரு தெய்வம் ஒருபோதும் உன்னை என்று கைவிடாத தெய்வம் மன்னவர் பிறந்தாரு மொழிக்கு வந்தாரு மனசெல்லாம் நிறைஞ்சிருச்சு என் மனசெல்லாம் நிறைஞ்சிருச்சு ஒரு புயலான கூடவே வந்து சொல்லும் புனிதர பிறந்தாரு இயேசு புனிதர பிறந்தாரு என்று உன்மேல் வீண் பழி சொல்லலாம் போனவன் என்று பட்டம் கட்டலாம் பாவி என்று உன்மேல் வீண் பழி சொல்லலாம் வீணாய் போனவன் என்று பட்டம் கட்டலாம் உருவாக்க பிறந்தாரே ஒரு தெய்வம் பாவி என்று தள்ளாத பாசமுள்ள தெய்வம் உருவாக்க பிறந்தாரே ஒரு தெய்வம் பாவி என்று தள்ளாத பாசமுள்ள தெய்வம் மன்னவர் பிறந்தாரு மகிழ்விக்க வந்தாரு மனசெல்லாம் நிறைஞ்சிருச்சு என் மனசெல்லாம் நிறைஞ்சிருச்சு பூமிக்கு ஒரு புதல்வராய் கூடவே வந்து சொல்லும் புனிதராய் பிறந்தாரு இயேசு புனிதராய் பிறந்தாரு தந்தனத்தம் தாழம் போது நீ ஒரு மெட்டு கட்டி ராகம் போது நீ தந்தனத்தம் தாழம் போது நீ ஒரு மெட்டு கட்டி ராகம் போது நீ தந்தனத்தம் தாழம் போது நீ ஒரு மெட்டு கட்டி ராகம் போது நீ தந்தனத்தம் தாழம் போது நீ ஒரு மெட்டு கட்டி ராகம் போது நீ தந்தனத்தம் தாழம் போது நீ ஒரு மெட்டு கட்டி ராகம் போது நீ தந்தனத்தம் தாழம் போது நீ ஒரு மெட்டு கட்டி ராகம் போது நீ அற்புதம் அதிசயம் இந்த ஆண்டு நடக்க போகுது அற்புதம் அதிசயம் இந்த ஆண்டு நடக்க போகுது கவலைப்படாத 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 அற்புதங்கள் குவிய போகுதே அற்புதங்கள் குவிய போகுதே சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு இது சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு இது சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு இல்ல தேவராஜ்யம் பலத்தில் உள்ளதே தேவராஜ்யம் பேச்சில் இல்ல தேவராஜ்யம் பலத்தில் உள்ளதே நிறைவேறாத வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறாத வாக்குத்தத்தங்கள் அவர் பலத்தால் நடக்க போகுதே அது உன் கண்கள் பார்த்து போகுதே சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு இது சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு இதுவரைக்கும் இங்கு
தேசங்கள் கேளா அற்புதங்கள் செஞ்சிடுமே எங்க சந்ததி. தடையெல்லாம் தாண்டி படியெல்லாம் ஓட்டி ஏறே ஏறே மேலே ஏறே. தடையாய் நிற்கும் இரும்பு கதவே தானாகவே திறக்க போகுதே. தடையாய் நிற்கும் இரும்பு கதவே தானாகவே திறக்க போகுது. கேள்விப்படாத ஐஸ்வர்யங்கள் கேள்விப்படாத ஐஸ்வர்யங்கள் உன் கதவை தட்ட போகுதே. உன் களஞ்சியங்கள் நிரம்ப போகுதே. சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு இது, சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு, சூப்பர். Papa Riga Riga Sabe Papa Riga Riga Papa Riga Riga Sabe Papa Riga Riga. சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு இது, சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு, சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு இது, சூப்பர் நேச்சுரல் ஆண்டு. सिंहासनमा बस्नु हुने परमेश्वरलाई, सिंहासनमा बस्नु हुने परमेश्वरलाई महिमा चढाउन हाम्रो प्रभुलाई, जय जयकार गराउन हुने येशूलाई, महिमाको योग्य हाम्रो राजालाई, जय जयकार गराउन हाम्रो प्रभुलाई, जय
परमेश्वर लाई महिमा चढाउन हाम्रो येशूलाई जय जयकार गरौँ न उनी येशूलाई महिमाको योग्य हाम्रो राजालाई जय जयकार गरौँ न हाम्रो प्रभुलाई जय जयकार गरौँ न हाम्रो प्रभुलाई जय जयकार गरौँ न हाम्रो येशूलाई। हमारे प्रभु यशाया नबी के पुस्तक 7वां अध्याय 4 वचन। യേശയ്യാ എഴുതിന തിരുക്കദർശന പുസ്തകം 4-ാം അധികാരം 7-ാം അധികാരം 14வது വചനം। யாராவது ஒருவர் எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம்। इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बहुत ही बढ़िया इमानुएल बनकर आज कितना साल हो गया है? इमानुएल बनकर परमेश्वर कितना साल हो गया है? 2025 साल हो गया है। हालेलुया। 2025 ஆண்டுகள் கர்த்தர் நமக்கு இம்மானுவேலராக இருக்கிறார். இது சாதாரணமான ஒரு பெயர் கிடையாது. சாதாரணமான ஒரு பெயரா இருந்துச்சுன்னா இந்த பெயருக்கு 50 வருஷம் தான், மிஞ்சி மிஞ்சி போனா 100 வருஷம் வச்சுக்கோங்க। अगर ये इमानुएल एक साधारण एक नाम नहीं है, there is something different with this name. Why I am telling you this? This is not Emmanuel. This name is not a simple and ordinary name. If it is an ordinary name, இது சாதாரணமான பெயரா இருந்துச்சுன்னா 100 வருஷத்துக்கு மேல தாண்டி இருக்காது। ஐயா கரெக்டுங்களா? சிஸ்டர் கரெக்டா? अगर ये साधारण नेम होता, ये எத்தனை வருஷம் இருக்கும்மா? ஒரு மனுஷனுக்கு ஆயுசு எத்தனை வருஷம் இருக்கும்? அவ்வளோதான்। சரி, இப்போ फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के महात्मा गांधी जी का चित्र किस में छापा गया है? हमारे पैसा में छापा गया है। क्यों? क्योंकि वह देश के लिए लड़े, देश के स्वतंत्रता के लिए लड़े। इसलिए महात्मा गांधी जी का चित्र उसके हमारे भारतीय देश में उसके चित्र को छापा गया है। हालेलुया, हालेलुया। वो भी कितने साल हो गया होगा? 75 years. 75 years. ஆனா இம்மானுவேல் என்ற பெயர் 2025 ஆண்டுகள் முடிகிறது, இன்னியும் கூட இம்மானுவேலாகிய கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார்। அல்லேலூயா। इम्मानुएल का परमेश्वर, इम्मानुएल का जो नाम है 2025 साल हो गया है लगभग। आज भी इम्मानुएल में इम्मानुएल का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जन अपने नाम में कभी एक फर्क, कभी एक डिफरेंट, उसमें क्या सिंपैथी है, कभी कुछ पता करें। शिवा ब्रदर के नाम से शिवा ब्रदर, क्यों उनका नाम शिवा ब्रदर आया? कैसा आया? उनका मम्मी पापा रखा होगा। सिंपल आंसर है पास्टर, इसको क्यों आप सवाल करते हैं पूछना ना? लेकिन उनमें एक अर्थ होगा, ताकि परमेश्वर एक इंसान को नाम देता है तो क्या चाहिए? उस नाम में कुछ एक अलग कर्तव्य होगा। अभी हमारे ब्रदर सुरेश हैं। सुरेश ब्रदर पैदा होने से पहले क्या उनका नाम सुरेश रखा जाएगा कर उनको जानते थे? नहीं जानता था।
जब मां के गर्भ से पैदा होने के बाद ही एक इंसान का नाम रखा जाएगा। लेकिन यहां पे परमेश्वर यीशु मसीह बहुत ही डिफरेंट तरीका से आया। 450 साल के पहले, कितने साल के पहले? 450 साल के पहले में हमारे पुराने नियम यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा रखा गया नाम इम्मानुवेल। பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் 450 வருஷம் இடைவேளை। அந்த 450 years दुनिया में क्या था क्या नहीं था कुछ अता पता नहीं है। ओल्ड टेस्टमेंट के बाद में, मीका के बाद में पूरे 450 साल ना ऊपर से कुछ आवाज था, ना नीचे कोई धरती में कोई था। किसी का कोई नामो निशान यहां पर बाइबल में लिखा नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर 450 साल के पहले ये इम्मानुवेल का नाम यहां पर दिया गया है, और 450 साल के बाद में इम्मानुवेल आया मरियम के द्वारा। हालेलुया। उस नाम में ही सामर्थ्य है। 450 साल के बाद इम्मानुवेल आना कोई, दैट इज नॉट द सिंपल वर्ड। क्या हम बोल सकते हैं कभी 5 साल के बाद कोई आएगा, बोल पाएंगे हम लोग? नहीं बोल पाएंगे। लेकिन 450 साल के बाद में आने वाला नाम यहां पर दिया गया है। वाई? दिस इज द गॉड। इसीलिए ये जगत का कौन है? पाप का छुटकारा देने वाला इम्मानुवेल। वो ये इम्मानुवेल आज भी हमारे संग है। यशायाह नबी के पुस्तक में 9वां अध्याय 6वां वचन को अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्तिमान, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 450 साल के पहले किया गया वाचा है। ये सब वाचा ने परमेश्वर 450 साल के पहले लिख दिया है यशायाह नबी के द्वारा। अब यहां पर फुलफिल हो रहा है। कहां पे? मत्ती में देखेंगे। आइए मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 21वां वचन को पढ़ेंगे जल्द से जल्द। மத்திய ரச்சித்த சுசமாச்சார் மத்திய 1ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம்। वहां एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। हालेलुया। 450 साल के बाद में मरियम को यह वचन दिया गया है मत्ती में। मत्ती पहला अध्याय 21वां वचन में वह एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम क्या है? यहां पर जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। यीशु का अर्थ क्या है? पापों का छुटकारा देने वाला। यीशु का अर्थ है हिब्रू में पापों का छुटकारा, और पराक्रमी, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये शांति का राजकुमार कौन है? आज भी हमारे बीच में है। अगर शांति का राजकुमार हमारे जीवन में नहीं है तो कहां हम लोग क्या हो जाएंगे? हमारे जीवन में ना शांति रहा, हमारे परिवार में शांति रहेगी, ना हमारे कामों में शांति रहेगी। हालेलुया। और ये राजकुमार का बहुत ही जरूरत है। ये परमेश्वर का राजकुमार, जैसा कि पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो ये शांति का राजकुमार आज तक हमारे परिवारों में कार्य कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं जल्द समाप्त करता हूं, इसलिए मैं समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 30वां वचन को जल्द से जल्द पढ़ेंगे। लूका
पहला अध्याय லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 30 32 வசனங்கள் வாசிக்க கேட்போம். 30 से लेकर 30 से लेकर 32 तक. हाँ. हालेलुया. यहाँ पर हिंदी में हम पढ़ेंगे. स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. हालेलुया. मैं कहता हूं ये परमेश्वर का अनुग्रह है. यहाँ पर जितने आज लोग आए हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है. जो उसे तालियां बजाकर पा लीजिए आप इस वचन को. ஆண்டவருடைய கிருபை உங்களை நோக்கி வருகிறது, உன் பிள்ளைகளை நோக்கி வருகிறது, உன் குடும்பத்தை நோக்கி வருகிறது. அந்த கிருபை இல்லாவிட்டால் நம்ம இன்னைக்கு जीवनோட உட்கார்ந்திருக்க முடியாது. हालेलुया. अगर वो अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है, नहीं होता, क्या आज हम जीवित रहते? नहीं. ये उसके अनुग्रह है. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना. वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा. ये परम प्रधान कौन है? हमारा पिता. किसका पिता? हमारा पिता परमेश्वर. अब जब कभी भी प्रार्थना करते हैं, जैसे कि आज हमने भजन संगीता का 102 का पहला वचन में क्या है? हे हमारे परमेश्वर, हमारे प्रार्थना को सुन ले. हालेलुया. इस प्रार्थना को सुन ले. कभी भी अगर आप प्रार्थना में बैठेंगे ना, Psalm 102 उसका पहला वचन को बोलकर प्रार्थना में बैठिए. उस प्रार्थना में आपका सामर्थ्य है. जब भी आप प्रार्थना करने बैठेंगे, जब भी आप प्रार्थना करने नील डाउन करेंगे, घुटना टेकेंगे, तब उस वचन को याद करना. उस वचन में सामर्थ्य है. क्योंकि यहां पर देखिए, स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. आप जब हे पिता परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुन ले, इस वचन को कहकर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह किस पर होगा? आपके लोगों के जीवन में, आपके हर एक मार्ग में, आप जो कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उसके मार्ग में परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में होगा. हालेलुया. 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 इसलिए मैं परमेश्वर से कहता हूं कि परमेश्वर यहाँ पर आए हुए आज इस 2025वां साल में आपका जन्मदिन मनाने के लिए जितने भी हमारे कलीसिया में बच्चे आए हैं, जितने परिवार आए हैं, सबके जीवन में अनुग्रह रहे. हालेलुया. इस 2025वां साल में सिर्फ नहीं, और आने वाले एक नए सालों में परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में रहेगा. यीशु के नाम से इसे तालियां बजाकर इस वचन को आप अपना लीजिए. हालेलुया. हालेलुया. क्यों कहता हूं बोलने से, परमेश्वर जो गवाही आपने आज सुने हैं, वो गवाही मेरे लिए सिर्फ नहीं, आपके लिए भी जरूर करेगा परमेश्वर. हालेलुया. आपके लिए भी जरूर करेगा. मैं विश्वास करता हूं. सिर्फ एक 5 मिनट में मैं समाप्त कर पीछे केक है ना, शिवा ब्रदर केक लेकर आ जाइए. और सुरेश ब्रदर आप दोनों थोड़ा सा केक सामने ला दीजिए. हालेलुया. यहां पर वचन कहता है अनुग्रह. अनुग्रह का बिना एक दिन, एक घंटा भी, एक मिनट भी हमारा जीवन जीवित नहीं रहेगा बिना अनुग्रह. इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? मरियम से कहा, मत डर. किस बात से तो डरती है? किस बात से तो डर रही है? किसी बात को
सोचकर मत डरना क्योंकि तू अनुग्रह पाई है। हालेलुया, हालेलुया। जरूर परमेश्वर का अनुग्रह आज आपका जीवन, आपका परिवार में पाया हुआ है। हालेलुया। इसलिए जरूर हम सब विश्वास करेंगे कि आज हम सब मिलकर केक कटिंग करने वाले हैं। அந்த இது எடுத்துக்கங்க பிரதர், துணி கட்டன். இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் நம்முடைய சபையில வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தேவனிடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? அனுகிரகம் பெற்றிருக்கிறோம், கிருபை பெற்றிருக்கிறோம். மரியாளை ஆண்டவர் தேவதூதன் சொல்றாரு, மரியாளே பயப்படாதே, நீ கிருபை பெற்றிருக்கிறாய். இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீங்கள் கிருபை பெற்றிருக்கிறீங்க. இந்த 2025 வருஷத்துல இந்த வார்த்தை கேட்கிறீங்க இல்லையா? நீங்க கிருபை பெற்றிருக்கிறீங்க அம்மா, நீங்க கிருபையை பெற்றிருக்கிறீங்க. அடுத்த வருஷத்துல இந்த கிருபையை நீங்க மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து சொல்ல போறீங்க. ஆண்டவரே, நீங்க அன்றைக்கு சொன்னீங்களே, என் வாழ்க்கையில கிருபையா நான் ஜீவனோடு இருக்கிறேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என் வாழ்க்கையில நீ செய்த நன்மைகளுக்காக, என் வாழ்க்கையில நீ செய்த ஒவ்வொரு கிருபைகளுக்காக நான் உண்மை எண்ணி துதிக்கிறேன். அடுத்த வருஷம் 2026 கிறிஸ்மஸ்ல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அநேக ஜனங்கள் இங்க இருப்பாங்க, நான் விசுவாசிக்கிறேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஜனங்கள் எல்லாம் கிருபை பெற்று கர்த்தருடைய வல்லமையினால விடுதலை பெற்று ஆசீர்வாதங்களை பெற்று அவர்கள் இங்க சாட்சியா உட்காருவாங்க. அல்லேலூயா. தேவன் தொடர்ந்து உங்களை காரியங்களை, பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய பிரயாசப்படுகிறார். நாம் அதற்காக ஜெப விண்ணப்பத்தோடு நம்மளை ஒப்பு கொடுப்போம். हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जैसे कि आज के वचन में अनुग्रह के बारे में और मरियम को देखकर कहा, हे मरियम मत डर, तू अनुग्रह पाया है, तू अनुग्रह पाई है। यही अनुग्रह आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के संतान में इस 2025 ईयर में नहीं और आने वाले 2026 के पूरे साल परमेश्वर के अनुग्रह आपका जीवन में बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से इस छोटे से प्रार्थना, इस छोटे से वचन को हम आपके हाथों में देते हुए इस वचन को समाप्त करते हैं। आमीन। अब हम हमारे बीच में ब्रदर शिवा, उनका बहुत ही अच्छा एक दर्शन था कि परमेश्वर के लिए एक सुसमाचार को कैसा भी फैलाना है कर हमारे FGC कलीसिया के ओर से बहुत ही बढ़िया से गॉड्स लव, प्रभु का प्रेम, एक नोटिस छापा गया है। तो मैं निवेदन करता हूं कि जाने से पहले इस नोटिस को आपके अपने हाथों में ले जाइए। कई लोगों को इस नोटिस को आप देखकर इस नोटिस के द्वारा उनका मन परिवर्तन सिर्फ नहीं, उनका जीवन भी बदलेगा। हालेलुया। उनका बीमार से छुटकारा पाएंगे, उनका शैतान के बंधनों से छुटकारा पाएंगे। ये वचन और इसमें जो भी गवाही लिखा है सही का जीवित गवाही है। हालेलुया। और जैसे कि शिवा ब्रदर यह आने से पहले कैसे थे और यहाँ आने के बाद में वह कैसा है आज हमारे बीच में, और बहुत ही बढ़िया से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के जन्मदिन के दिन उनका डांस को हम लोग सब देखने के लिए परमेश्वर ने उनको यहाँ पर लाया है। हालेलुया। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। और ब्रदर शिवा ब्रदर के लिए प्लीज मैं सामने सिस्टर मीना और भाई शिवा भाई को मैंने सामने बुलाकर इसको मैं उनके हाथों में देते हुए मैं इसके लिए छोटा सा एक प्रार्थना करते हुए इसको मैं अभिषेक करना चाहता हूँ। हम दोनों हाथ में पकड़ लीजिए सिस्टर, दोनों हाथ में पकड़िए। दोनों हाथ में पकड़ते हुए मैं इसके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। हम सब अपने अपने हाथों को वहाँ से बढ़ाएंगे ताकि इस पत्र को पढ़ने वाले हर एक के जीवन में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत कार्य करे, शैतान के बंधनों से छुटकारा पाए। और जो कोई भी अंधकार में फंसे हैं, अंधकार से फंसे हुए लोगों को परमेश्वर ज्योति में लाए। और वे मात्र नहीं, और जो कोई भी इस वचन को, जो कोई भी इस गवाही को पढ़ते हैं उनका जीवन मन परिवर्तन होवे। और सिर्फ वे मात्र नहीं, उनका द्वारा हर एक से हर एक लोग जो कोई भी ड्रग्स में जो एडिक्टेड है,
जो नशा में एडिक्टेड है, जो पाप में फंसे हुए हैं, हर एक लोग इस पत्र को पढ़ते समय उनका जीवन में एक नया ज्योति, इम्मानुवेल का परमेश्वर इम्मानुवेल बनकर उनका जीवन में कार्य करे। खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खासकर से भाई शिवा के लिए और सिस्टर मीना के लिए। पिता परमेश्वर, इस बड़े से बड़े कार्य करने में आपने उनको पिता प्रभु जी अगुवाई किए हैं। धन्यवाद करता हूँ खुदावन, इनका जो विजन, इनका जो दर्शन आपने दिया है इस पत्र के द्वारा। पिता परमेश्वर, इस अंडमान द्वीप समूह में कई लोग पाप से मर रहे हैं राजा, पाप के बंधन में फंस हुए हैं राजा। वो उस पाप के बंधनों से बाहर निकलने में पिता परमेश्वर उनको बहुत ही नामुमकिन लग रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर आज भी जीवित है। उसको पिता परमेश्वर नामुमकिन को पिता परमेश्वर आप पिता खुदावन आप सफलता कर कर उनके आप नया ज्योति के मार्ग में आप लाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वचन में, इस गवाही में हर एक लोग पिता परमेश्वर पाप के बंधनों से छुटकारा पाकर इस FGCA कलिसिया में आकर प्रभु के गवाही दे, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके। खुदावन, हम सब मिलकर पूरी कलिसिया हाथ बढ़ाते हुए इस पत्र को आशीष करते हैं। पिता पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस पत्र को आशीष करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। परमेश्वर आपको और इस्तेमाल करे। अंडमान द्वीप समूह में आपके द्वारा हर एक लोग इस पत्र को जानकर गवाही देंगे। आमीन, आमीन। Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. संत होना। हालेलुया। ओके, कतरंगले आशीर्वाद परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।